Hello everybody. Welcome to my channel. We are going to do today the first war of independence 1857, the first chapter of history. The reason of first war of independence war. We will start from political causes. First one is disrespect shown to Bahadur Shah Zafar. Lord Dalhousie announced that the successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. Okay, the name of Mughal kings were removed from the coins by the company. Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his successor would not be allowed to use imperial titles. So, with this, we have completed the first point of disrespect shown to Bahadur Shah Zafar. Second one is absentee sovereignty of the British. India was being ruled by the British government from England at a distance of thousand of miles. Okay, so other point is India's wealth was being drained to England and was not utilized for their welfare. So due to this, there was a spark in Indians that these people are exploiting us and they are not doing anything regarding their welfare or anything, due to which the poverty and famines occurred in India. So this also led to be one of the factor of revolt. The next point is treatment given to Nana Sahib. Due to doctrine of lapse, Nana Sahib was the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa, due to which the British refused to grant Nana Sahib the pension they were paying to Bajirao II. Nana Sahib was forced to live at Kanpur, far away from his family seat at Pune. Okay, at Pune. So this was also the one of the reason. So this later on became the reason for the revolt. Now fourth one is expansion policies. So there are four expansion policies in which first one is doctrine of lapse. So Lord Dalhousie announced this doctrine of lapse. So in what was this? Indian ruler died without any male heir, his kingdom would lapse. This was known as doctrine of lapse. So होता क्या था, जब कोई रूलर मर जाता था अपने बिना कोई एक बेटे के साथ जो आगे आगे अपना राज्य संभालेगा उसका, तो उससे क्या होगा, जो वो राज्य होगा वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा और कोई भी अगर अडॉप्टेड सन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी. ठीक है, उसी केस की वजह से नाना साहेब को पेंशन नहीं मिली थी ब्रिटिश के उससे. फिर जो अगला पॉइंट है वो है आउटराइट ऑफ वॉर. सो इसमें क्या हुआ था, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो फॉट हुआ था, एस्टैब्लिश ब्रिटिश एज द मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ठीक है, सो बैटल ऑफ बक्सर में उनकी वजह से वो बंगाल, बिहार और ओडिशा उनके अंडर कंट्रोल में आ गया था. फिर उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़े और फिर एंग्लो सिख वॉर लड़े. ठीक है, सो अभी इसमें क्या है, उन्होंने वॉर करके काफ़ी सारे टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया था. ठीक है, फिर अगला जो है वो है सब्सिडरी अलाइंस. सब्सिडरी अलाइंस क्या है अब? सो बेसिकली सब्सिडरी अलाइंस है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सी. सब्सिडरी अलाइंस वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन princely states by virtue of which these state lost their sovereignty to British. ठीक है, अभी इसमें क्या होता था, ये एक वो होता था, सिग्नेचर होते थे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होते थे ब्रिटिश के साथ. अब जो स्टेट होते हैं जो अभी जिनको एड चाहिए होती है ब्रिटिश से, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश अपनी एक लार्ज ग्रुप ऑफ आर्मी उनको दे देते थे, जो जिनको उनको मतलब मैनेज भी उनको ही करना था, उनके मेंटेनेंस फी उनको देने थे और ब्रिटिश उनको हैवीली चार्ज करते थे. अब ये एक एक्सपेंशन पॉलिसी कैसे बन गई? सो अब ड्यू टू इतना सारा फिर क्या बोलते हैं खर्चे होते थे उनके राजाओं वगैरह के, जिससे वो कई बार वो राज्य बैंक करप्ट हो जाते थे, ड्यू टू विच फिर वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाते थे. और उसके बाद फिर अगला है एलिज मिसरूल. अभी इसमें क्या करते थे, जब कोई एम्पायर सब्सिडरी अलायंस की उसमें गिरने ही वाला होता था, बस बैंक करप्ट ही होने वाला होता था,
ब्रिटिशर एग्रीमेंट्स लेके आ जाते थे और कहते थे आप इस जगह को अच्छे से रूल नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये हम ले रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अवध के साथ किया था। तो ये भी एक फैक्टर बन गया था फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी अगला था सोशल रिलीजियस कॉजेज़। ठीक है, अभी इसमें क्या था, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। तो अभी जैसे ब्रिटिशर ने सती बैन कर दिया, चाइल्ड मैरिज बैन कर दिया, उसकी वजह से लोगों को स्पार्क हो गया कि हमारे कस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बन गया जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फिर था अपेरेंसन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। अभी ये कैसे बना, अभी ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कि उन्होंने जैसे कि वो रेलवेज़ में लाए, फिर रेलवेज़ वगैरह लाए और फिर टेलीग्राफ भी लेके आए। सो अभी एक वो रूमर्स चलने लगे थे, जो टेलीग्राफ्स के पोल हैं वो इसीलिए लगाए हुए हैं, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे उनको उस पर टांग देंगे। ठीक है, और जो रेलवे में था, जो लोअर कास्ट और हायर कास्ट उस टाइम में जो वो मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, अनटचेबिलिटी का उस वक्त था, उनको एक साथ बिठाते थे, उनको एक ही उसमें कंपार्टमेंट पे रहना, मतलब उनको बैठने मिलता था। सो अभी वो अगेंस्ट सोशल बिलीफ के उनके साथ हो गया कि ये हमको जो हायर कास्ट वाले होते थे वो कहते थे इनका हमें लोअर कास्ट के साथ बिठा रहे हैं। सो इसी रीज़न से वो भी एक रीज़न बन गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। फिर इसके बाद था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अभी ये क्या था इसमें, अभी ब्रिटिश को क्या लगता था, वो इंडियन से सुपीरियर है, इसीलिए वो इंडियंस को मिसट्रीट करने लगे, उनको मतलब बहुत ही जैसे उनको रेसिज्म उनको देखना पड़ा था। जैसे कि कई जगह जैसे होटल्स में होता था डॉग्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड उस टाइम पे, जो उसकी वजह से वो भी एक स्पार्क रीज़न बन गया था कि इंडियन और उसके बीच में एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, अभी है करप्शन इन एडमिन। जो पुलिस और जो पेटी ऑफिसर्स थे वो करप्टेड थे, वो घूस दे, जो रिच लोग होते थे वो घूस दे के बच जाते थे, बट जो पुअर और नॉर्मल पीपल थे दे वर लूटेड एंड ऑप्रेस्ड। ठीक है, उनकी वजह से उनको मतलब नो रीज़न उन पर ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते थे, और क्राइम के उस पर जो उन पर एक्चुअली नहीं होते थे, जैसे फॉल्स चार्जेस। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। अभी इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफेयर विद द लोकल रिलीजन एंड सोशल कस्टम, दे डिनाउंड आइडल वर्शिप एंड डब्ड लोकल बिलीफ एज इग्नोरेंस। ठीक है, अब वो भी एक रीज़न बन गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। उसके बाद था फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अभी इसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस ऑफ oriented learning to western education was not received well by the people, especially by the पंडित। अभी इसमें क्या होता था कि जो लोगों को लगता था कि ये ब्रिटिशर्स हम मतलब उन लोगों के उन बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन देख के ब्रिटिशर्स ऐसे अपने टूवर्ड्स खींचना चाहते थे, और उसकी वजह से वो भी एक रीज़न बन गया था कि फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद है टैक्सिंग रिलीजन प्लेसेस। अब ये क्या हुआ था, उस टाइम पे तो किंग्स वगैरह डोनेशन करते थे जैसे जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे, बट ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने टैक्स करने लगे उनसे। अब इसमें लोगों के आगे कि हमारे रिलीजन प्लेसेस को टैक्स कैसे कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न बन गया एक वर्ल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इट enabled a convert from Hinduism to another religion to inherit the property of his father। ठीक है, उसके बाद था इकोनॉमिक कॉजेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, दे मेड एग्रीकल्चर इन इंडिया एज इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री इंग्लैंड। तो अभी इसमें क्या होता था कि इंडिया को एज अ सिर्फ वो बना दिया था, वो एज उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया हुआ था। वो जितनी भी फार्मिंग जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे इंडिगो चाहिए था उन लोगों को, तो वो इंडिगो सिर्फ वो फोर्स कर देते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे उनको फोर्स करते थे कि आप वही स्पेसिफिक क्रॉप करो, और उनसे फिर चीप क्या बोलते हैं प्राइस में वो लेके इंग्लैंड भेजते थे और उधर वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद तो अगला कॉज है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। So, the transfer of wealth from India to England, for which India got no proportion economy return, is
कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी क्या होता था, ब्रिटिश कम प्राइजेस में आके यहाँ से लेके मतलब सामान रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पे गुड्स को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पे लाके महंगे दामों में बेचते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को लॉस होने लगा, जिसकी वजह से वेल्थ सारी इंग्लैंड में जाने लगी और इंडिया की इकोनॉमी गिरती चली गई। उसके बाद था डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अभी इसमें क्या किया ब्रिटिशर ने बैन कर दिया हैंडीक्राफ्ट, और अभी हैंडीक्राफ्ट उन लोगों को बैन कर दिया और उनसे लोग अब उससे क्या वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे गुड्स, और वो सारे जो ब्रिटिश ले जाते थे फिनिश गुड्स, सो एट विच उसकी वजह से वो जो डीके हो गए, फिर कॉटेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट सब डीके हो गए, क्योंकि वहाँ पे अब लोग, अभी उन्होंने बैन कर दिया, अब लोग वगैरह वहाँ से ख़रीद नहीं सकते थे। सो अगला है ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी इससे ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको एज बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था और उनको यूजुअली जॉब्स नहीं मिलती थी। सो अब इससे क्या हुआ, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों को कोई नौकरी नहीं होती थी और देयर वाज नो इनकम सोर्स, तो इसीलिए वो और पॉवर्टी की तरफ चले गए। अब उसके बाद है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंटी। अब इकोनॉमी डिक्लाइन करता गया वो इसकी वजह से, और इसकी वजह से जब ना पे कोई पैसे ही नहीं आ रहे थे इंडिया के पास, तो फिर वो आगे क्या कर सकते थे प्रोसेस करने के लिए गुड्स, इसकी वजह से वो एक वन मोर रीज़न बन गया था। उसके बाद है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स। अब जो इंडिगो कल्टिवेट करते थे उनको वो नॉर्मल क्रॉप्स नहीं अलाउड नहीं होता था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि वो नॉर्मल क्रॉप्स नहीं अलाउ कर सकते थे, इसीलिए उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट भी मिलता था ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स उनको ऑब्वियसली बहुत बुरा ट्रीटमेंट देते थे, और जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न बन गया था एज ए रिवॉल्ट फॉर 1857। पॉवर्टी एंड फेमाइज, अब कोई जॉब नहीं है, नो इनकम सोर्स, खाना नहीं हो रहा है क्योंकि सारे इंडिगो हो रहा है प्रोडक्शन में, और लोग फिर अब पैसे कमाने के लिए कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए, तो फूड नहीं हो रहा था प्रोड्यूस, उसकी वजह से फैमाइन ब्रोक हुई, पॉवर्टी ब्रोक आउट हुआ, और वो भी एक रीज़न बना था। अभी था डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अभी इसमें क्या हुआ था, अभी क्या होता था कि कई जो इंडियन किंग्स होते थे वो कई बार जैसे इनाम के तौर पे वो लैंड गिफ्ट करते थे। सो अभी ब्रिटिशर ने इसका फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने क्या किया, ईमान कमीशन को उन्होंने बैन कर दिया, मतलब ईमान कमीशन एक वो लाए जिसमें उन्होंने जितने भी लैंड्स जो उन्होंने दिए हुए थे दूसरों को एज इनाम के तौर पे वो लैंड कन्फेस्टिगेट कर लिए थे, क्योंकि और वो भी एक रीज़न बन गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी था मिलिट्री कॉजेस, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर नॉट ट्रीटेड गुड एंड वर पेड लोअर सैलरीज। फिर था जनरल सर्विस एस्टैब्लिश एक्ट। अभी इसमें क्या हुआ था, जो उन्होंने एक ब्रिटिशर ने एक एक्ट निकाला था, उसमें इंडियन सोल्जर कुड बी सेंट ओवरसी ऑन ड्यूटी। दिस एक्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर। तो अभी जो ब्राह्मण सोल्जर थे उनको फील होता था कि उनकी जो कास्ट है वो डेंजर में आ जाएगी जब वो अगर सी को क्रॉस करेंगे। उस टाइम का वो वैसा मतलब क्या बोलते हैं बिलीफ होते थे, तो इसकी वजह से वो भी एक रीज़न हो गया था। अब था लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी। अभी क्या होता था कि अभी इतना लार्ज प्रोपोर्शन होता था और रेशो था 1:4000, मतलब एक ब्रिटिशर के इसमें 4000 इंडियन होते थे। अब इसमें क्या हुआ कि इंडियंस को लगा कि अभी एज हम मात्रा में इंडियन ज़्यादा है कंपेरेटिवली ब्रिटिश सोल्जर से, तो वो इजीली कॉन्कर करके अपना वो लैंड वापस ले सकते हैं। अभी था डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंस। अब इसमें क्या हुआ था, अभी क्या होता था, अब उनको क्या बोलते हैं अपने घर से दूर उनको ड्यूटी पे भेज दिया जाता था, पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी जाती थी, बट ब्रिटिशर्स को एज एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी कि वो अपने घर से दूर जा रहे हैं, पर इंडियंस को नहीं मिलती थी, जिससे वो भी एक रीज़न बन गया था। अब था ब्लीक प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। अभी इंडियंस को प्रमोशन मिलने के चांसेस नियरली ज़ीरो थे। जितने भी सारे प्रमोशन होते थे वो ब्रिटिशर्स को होते थे, बट इंडियंस को बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं मिला जाता था। उसके बाद था फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। जो ट्रूप्स थे उनका बहुत फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कि जैसे आप रेशो ही देख सकते हो 1:1000, जिसकी वजह से अगेन इंडियन को लगा कि वो स्टिल कॉन्कर कर सकते हैं ब्रिटिशर्स को। उसके बाद था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। ये पढ़ते ही समझ आता है कि ब्रिटिश ट्रूप्स अब इतने कम थे, तो अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न बन गया था। अब है लो सैलरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो ब्रिटिशर्स को जिस काम के लिए
मतलब दुगने पैसे मिलते थे उतने ब्रिटिश को कम मिलते थे. ब्रिटिश वॉज पेड 8 times मोर देन इंडियन सोल्जर. मतलब अगर इंडियंस को अगर 10 रुपये का किसी चीज़ का मिलेगा तो ब्रिटिशर्स को 80 रुपीज़ में वो काम होगा. सो इसकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा कॉज बन गया था ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, इन विच हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. कोई डाउट्स और क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, और कहीं पे अगर आपको लगे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो उधर भी कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.